Okay, so let me begin the PPT once again. Okay, let me know if you are able to see the PPT. Are you? Yes. So we were discussing that the complete matter in the universe is classified into solid, liquids, and gases, and we are further interested in these solids. Far, far from the early beginning, the scientists are interested more in solids because solids make most of our surrounding. Okay, and solids are the most things which we are using deliberately. Liquids and gases are necessities. Okay, but we consume more of solids. So these solids are classified into three categories: conductors, semiconductors, and insulators. And these categories are depending upon the energy band structure of them. Okay. Now, energy band structure that I will discuss with you. Okay, in the coming portion. Now, conductors are the good conductors of heat and electricity, like silver, gold, copper, steel. Okay, even some liquids are also good conductors, like seawater. Then, because of the solid content in them, because of the presence of salt in them. Okay, salt is again a solid material. Then semiconductors are germanium, silicon, the diodes, and the LEDs, transistors, the microchips. These are semiconductors. These are mostly man-made devices. Semiconductor natural materials are only germanium, silicon. Okay, but these which are shown in the pictures are man-made devices. Okay, these are naturally occurring minerals like silver, gold, copper, steel. These are minerals. Steel is again artificially created, but these are naturally occurring conducting materials. Insulators, some of them are natural like wood, etc., and others are man-made like plastic, glass, ceramic, rubber, paper, etc. So these are insulators because they do not conduct. And semiconductors, as their name is, it is semi-conductor. It will show conductivity in between that of conductor and insulator. So we can make a semiconductor conduct, or we can make a semiconductor to act as an insulator. Okay. Now, semiconductors are further classified into the categories of intrinsic semiconductor, which is a pure semiconductor, and extrinsic semiconductor, which is a doped semiconductor. Doping is added in the semiconductor basically to enhance its conductivity, to increase its conductivity. Okay. Now, examples of intrinsic or pure semiconductors are germanium and silicon. These are pure, naturally occurring minerals, crystals, semiconductor. And examples of extrinsic semiconductors are the P type and N type semiconductors, which are made after adding doping into the natural semiconductor. Okay, now I hope you know P type, how P type is made. When we add travalent impurity to the pure crystal of suppose silicon or germanium, then the travalent impurity increases the number of holes. So holes are positive, so we get a P type of semiconductor. When we add pentavalent impurity, which is having more number of electrons, then the number of electrons are negative, so they are increased, so negativity is increased, so it is an N type of semiconductor. So the impurities or the doping material which are added are travalent and pentavalent. Travalent impurity is also called as acceptors impurity. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर्स इम्प्योरिटी. ठीक है, एक्सेप्टर्स इसलिए क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करने के स्टेट में रहता है. सो इट इज़ हैविंग होल इन मोर क्वांटिटी. पेंटावेलेंट डोनर इसलिए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए डोनेट कर दिया है जो कंडक्ट करने के लिए काम आएगा. सो इट इज़ डोनर्स इम्प्योरिटी. Okay, so this is basic type of semiconductor. This we can say the tree diagram of semiconductor. सबसे पहला क्लासिफिकेशन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक प्योर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एक्सट्रिंसिक डोप होते हैं तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स या होल्स दोनों में से एक का नंबर बढ़ा दिया जाता है. इंट्रिंसिक के एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल. एक्सट्रिंसिक का एग्जांपल पी टाइप और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक है, होल्स ज़्यादा तो पी टाइप, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो एन टाइप, एंड दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ डोपिंग
Doping is the foreign element or some other element than the natural silicon germanium, which is used to add and make the conductivity good. Okay, so now this is Hall effect. Now before we see this concept, let me quickly tell you about the classification conductor, semiconductor और insulator का जो classification है, that I am going to tell you. So let us see classification कैसे डिवाइस किया गया. So classification of solid is as per the energy band diagram. Okay. अब ये एनर्जी बैंड डायग्राम, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड गैप वगैरह ये सब क्या है वो देखेंगे अभी. सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. सो सपोज दिस इज एनी सपोज एटम जिसके अंदर का ये न्यूक्लियस है. तो सपोज करो ये सिलिकॉन का एटम है. सिलिकॉन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, कैन एनीवन टेल? तो ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस है जिसमें +14 का चार्ज है. ओके, न्यूक्लियस इज हैविंग प्रोटॉन, सो इट इज हैविंग 14 protons basically. Okay, 14, very good. Now first orbit, second orbit, कितने ऑर्बिट का स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, कोई बता सकता है? हाउ मेनी ऑर्बिट डज सिलिकॉन हैव, कैन एनीवन टेल मी? सिलिकॉन के फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में है 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन. सो 14 atomic number, so 14 proton, so positivity on nucleus, and then 14 electrons, they are divided at 2 8 4. सो 2 and 8 वाला ऑर्बिट तो स्टेबल ऑर्बिट है और ये है आपका वैलेंस ऑर्बिट विच इज़ अनस्टेबल, विच वांट टू गेट स्टेबिलिटी. अब इसके बाद अगर ऑर्बिट होता तो वो इमेजिनरी ऑर्बिट कहाँ होता, तो वो सपोज़ यहाँ पे कहीं तो भी होता. ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ पे जंप करेगा. सो ये है उसका इमेजिनरी ऑर्बिट. और अब ये जो केक है इसका मैं ऐसा पीस काटूँ तो ये डायग्राम अगर मैं फिर से बनाती हूँ तो ये है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम जिसमें ये लास्ट ऑर्बिट है आपका वैलेंस बैंड. ठीक है, दिस इज दिस, यहाँ तक का ऑर्बिट. यहाँ पे आपके सभी इलेक्ट्रॉन आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये वाला ऑर्बिट जो लास्ट ऑर्बिट के बाद में है ये है आपका कंडक्शन बैंड. सो दिस इज़ योर कंडक्शन बैंड, this is your valence band. Conduction band is imaginary band after your last orbit. So अगर इसके बाद ऑर्बिट होते तो कहाँ होते, वो है आपका कंडक्शन बैंड जो कि ज़्यादातर एम्प्टी होता है. एंड दिस इज़ वैलेंस बैंड जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए. तो डीप वाले इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर हैं और ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो ज़्यादातर अभी ये करेंगे, टेक पार्ट करेंगे आपके अलग अलग रिएक्शंस में. सो वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर ऊपर है. ठीक है, सो ये है एनर्जी बैंड डायग्राम. तो ये एक्चुअली एनर्जी लेवल्स है. दिस इज एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, दिस इज एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, and the energy difference between the two is called as band gap, EG. याद है सबको एनर्जी बैंड गैप, प्रैक्टिकल किया है हमने. ठीक है, अब क्या होगा व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज, नाउ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये एनर्जी बैंड गैप जो होता है ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है. कुछ सेमीकंडक्टर का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, कुछ सेमीकंडक्टर का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा आसपास. सो ऑन एन एवरेज इट इज़ हैविंग energy band gap of 1 electron volt. So this energy gap can be easily achieved by some sort of temperature or some sort of potential. तो आप अगर टेम्परेचर सप्लाई करते हो, पोटेंशियल सप्लाई करते हो, तो क्या होगा, दिस एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल देन जंप फ्रॉम हियर टू हियर.
तो इलेक्ट्रॉन ने जहाँ से जंप करी वहाँ पे एक खाली स्पेस इलेक्ट्रॉन की छूट जाती है एंड दैट एम्प्टी स्पेस इज अ होल। तो इस तरह से बनते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन, और फिर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करने के लिए काम आता है। सो दिस इज योर semiconductor which can act as a conductor after supplying this much amount of energy. Okay, so you can make a semiconductor conduct. अब ये क्या होता है, यहाँ पे होल कैसे आया? तो एक्चुअली ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, सिलिकॉन इज बेसिकली अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या हो रहा है, ये सपोज सिलिकॉन का न्यूक्लियस और दो ऑर्बिट तक का स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें न्यूक्लियस आ गया और दो ऑर्बिट आ गए जो स्टेबल है, मतलब यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाले ऑर्बिट तक का। अब इसके बाद चार इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी ऑर्बिट में, वो चार साइड में आते हैं, और वो चार इलेक्ट्रॉन नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ चार साइड से बॉन्ड बनाते हैं। तो इस साइड में एक और सिलिकॉन का एटम है जिसमें 2 और 8 वाली ऑर्बिट आ गई, और इसके चार इलेक्ट्रॉन बाजू में। सो ये इस तरह से चार साइड से चार सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं काउंट करूँ इस सिलिकॉन के लिए, तो अभी इसके लिए ये पूरा बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया। उसके लिए ये ऑर्बिट है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ठीक है। वैसे ही इस सिलिकॉन के लिए भी इसके चार साइड वाले चारों इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी चार साइड वाले चार बॉन्ड। तो इस तरह से एक मेश जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और जब हम कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू जंप फ्रॉम दिस टू दिस, तो एक्चुअली कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और खुली ऑर्बिट में आएगा, जो कि ये बाहर की ऑर्बिट है। तो ये बॉन्ड था, अब बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये बन जाता है होल। सो दिस इज अ होल। सो इलेक्ट्रॉन एंड होल आर ऑलवेज इन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में आया, मतलब वो बॉन्ड के तोड़ के बाहर आया, तो वो बॉन्ड की जगह पे बन जाता है एक होल। So this is called electron hole pair formation and it is always form in pair. एक इलेक्ट्रॉन बनेगा तो एक होल भी बनेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जाता है कंडक्शन बैंड में, तो होल रह जाता है वैलेंस बैंड में। हमेशा के लिए याद रखो, होल्स आर फॉर्म्ड इन वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स आर गॉट इन कंडक्शन बैंड आफ्टर सप्लाइंग सम टेम्परेचर और सम वोल्टेज विच कैन सेटिस्फाई दिस एनर्जी गैप, जो इतनी एनर्जी गैप को सेटिस्फाई कर सके ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करे। So this will create a hole in the valence band, a vacancy of electron in the valence band, क्योंकि वो बॉन्ड था दो इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहाँ वहाँ पे एक एक होल आ जाएगा। So it is always a pair formation. Okay. Now what will happen if I have some potential difference here? दो मैंने प्लेट्स लगा दी, बैटरी, positive negative. So electrons are negatively charged, so they will get attracted towards the positive potential. So electron will start flowing towards the positive plate like this. Okay. So जो भी खाली इलेक्ट्रॉन है, खुले इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ फ्लो होना शुरू होंगे। So this is the direction of electron current. Sorry, this is the direction of electron, and current due to electron will be always opposite because electrons are negative charge. So current due to electron will be always in the opposite direction. Now what will happen to the holes? Now holes are not any entity, holes are vacancy of electron. So holes move करेंगे towards negative का मतलब क्या होता है, इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ने सपोज यहाँ पे जंप करी, तो फिर ये होल यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से होल मूव करेंगे। सो होल विल एज इफ द होल्स आर मूविंग फ्रॉम this direction to this direction towards negative plate. So this will be the direction of holes, and since holes are considered lack of negativity, so holes are considered positive. So current due to positive charge is always in the direction of charge. So hole वाला जो current है, sorry, वो इसी direction में बनेगा। So you can see hole and electrons are moving in opposite direction. ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं पर होल इधर जा रहे हैं, पर दोनों के करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दोनों करंट ऐड होते हैं सेमीकंडक्टर में, और इसलिए सेमीकंडक्टर में करंट वोल्टेज के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें दो दो चीज़ करंट बनाती है। इलेक्ट्रॉन्स भी करंट बनाते हैं, होल्स भी करंट बनाते हैं। एक्चुअली होल्स कुछ चीज़ नहीं होती, होल्स होती है इलेक्ट्रॉन की खाली जगह। अगर इधर वाले इलेक्ट्रॉन ने इस बॉन्ड में जंप करी इस पॉजिटिव प्लेट के अट्रैक्शन के लिए, तो ये होल यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया,
तो एज इफ द होल इज शिफ्टेड, ये देखो ये होल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये ऐसे होगा कि जैसे होल मूव कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, ओके, and electron is moving towards positive, but current due to both of them will be always in the same direction, and hence we will get in semiconductor twice the amount of current. और इसलिए सेमीकंडक्टर का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो डायोड का, ये स्ट्रेट लाइन नहीं था, शुरुआत में देर वॉज नो करंट एंड देन द करंट स्टार्टेड स्लोली एंड देन रैपिड इंक्रीज इन द करंट, याद है सबको? सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, ओके। So this all we are talking about intrinsic semiconductor, pure semiconductor, जिसमें एक ही प्रकार का एलिमेंट है जैसे कि सिलिकॉन। Now what happens when we would do doping? डोपिंग में क्या होता है, एक साइड में हमने सपोज डोपिंग कर दिया यहाँ पे ट्रैवलेंट का, सो ट्रैवलेंट इम्प्योरिटी लाइक बोरॉन, जिसमें एटॉमिक नंबर लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये एक सिलिकॉन को यहाँ से हटाएगा और यहाँ पे खुद जाके बैठेगा, तो यहाँ पे बोरॉन बैठ गया। अब बोरॉन के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 साइड से 3 कंबाइन हो जाएंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन हमेशा खाली रहेगा, तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ होल। तो एक बोरॉन एटम के साथ एक होल फ्री, तो इस तरीके से जितने आप बोरॉन एटम डालोगे उतनी इम्प्योरिटी वहाँ पे होल्स की बढ़ती जाएंगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स था, ओके। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे बोरॉन हमने डाला तो ये नंबर ऑफ होल्स बढ़ गया, सो वी आर मेकिंग n लेस देन p, वी आर एडिंग मोर p's, n तो रहेंगे पर p हमने बढ़ा दिए, सो नाउ दिस पॉजिटिविटी हैज़ इंक्रीज, सो इट हैज़ बिकम p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब वैसे ही केस होगा अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं लाइक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होता है, एक सिलिकॉन को सपोज एक फॉस्फोरस रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोरॉन नहीं है, अभी यहाँ पे सिलिकॉन ही है, या तो पेंटावेलेंट डालो या तो ट्रैवेलेंट डालो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पेंटावेलेंट डाला तो 4 साइड से 4 इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन हो गए बॉन्ड में, पर फॉस्फोरस के पास 5 थे, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा का रहेगा, तो जितने फॉस्फोरस के एटम उतने इलेक्ट्रॉन फ्री। तो इस तरह से व्हाट वी हैव डन, वी हैव आउटनंबर्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द होल्स, so here n is greater than p and hence this is n type of semiconductor. Got it everyone? Have you understood the type of semiconductor? Yes, respond immediately. Yes, very good. So I hope इसके बाद अगर कोई क्लासिफिकेशन पूछता है तो आपको बताते आना चाहिए। अब एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो, विच मूवमेंट इज ईजियर, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली और होल्स कैन मूव इजीली? किसका मूवमेंट आसान है, इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का? इलेक्ट्रॉन्स का, यस, वेरी गुड निकिता। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खाली जगह पे है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वॉइड स्पेसेस ऑफ द एटम, एटम से बाहर है, इमेजिनरी ऑर्बिट में है, मतलब एक्चुअल एटम के साइज से बाहर है, तो दे कैन ईजिली मूव बिटवीन द एम्प्टी स्पेस। बट होल्स का कैसे है, होल्स कोई एंटिटी नहीं है, होल इज द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, उधर वाले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जंप करी, मतलब यहाँ का होल वहाँ पे गया, इस तरह की केस होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब तक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बॉन्ड में जंप नहीं करता तब तक होल यहाँ से वहाँ मूव नहीं होगा, इसलिए होल्स का मोशन डिफ़िकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के मुकाबले, और इसलिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। डू यू गेट इट? सो मोबिलिटी, व्हाट इज मोबिलिटी? If there are 100 electrons and only 50 can conduct, so mobility is 0.5. And if there are 100 holes and only 20 can conduct, then mobility is 0.2. So generally electrons are easily moving, so mobility of electrons is more, and holes easily move नहीं कर सकते, तो mobility of holes is less. समझ में आया? If someone asks you the question, n type is having a good conductivity or p type, so what should be your answer? n टाइप ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं या b टाइप? n टाइप, क्यों? वाई n टाइप? क्यों n टाइप, क्यों? बिकॉज n type has large number of electrons, yes, very good, and electrons have good mobility, very good everyone. So I hope you are getting the basics of semiconductor.
अगर बेसिक सेमीकंडक्टर का अच्छे से समझ में आया तो फिर इसके बाद वाले सभी डिवाइसेस, उनके ऑपरेशंस सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो अब यही बात होती है, आपको पूछा जाता है पीएनपी अच्छे ट्रांजिस्टर है या एनपीएन, किसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। सो कैन यू गेस द आंसर, एनपीएन इज बेटर और मोस्टली यूज्ड, व्हाई एनपीएन आर मोस्टली यूज्ड? NPN. Why? Because they have two N regions. So their majority charges are electrons, and electrons can easily move. Electrons have better mobility. So NPN transistors are mostly used in all the circuits. So I hope आपको ये फिर बैंड थ्योरी समझ में आई। अब इस बैंड थ्योरी में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का डायग्राम कैसे आता है? इन दिस बैंड थ्योरी, कंडक्टर के डायग्राम में ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इसके बीच का एनर्जी गैप ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। सो फॉर कंडक्टर्स देर इज़ नो एनर्जी गैप। एक्चुअली ये उल्टे साइड में ओवरलैप भी करता है, मतलब कुछ पोर्शन कंडक्शन बैंड का वैलेंस बैंड के साथ आ जाएगा, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स आखिरी ऑर्बिट से खुली जगह पे आ गए, मतलब ये दोनों जो है बैंड्स वो रप्चर हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप सेट फ्री हो जाते हैं कंडक्टर्स में विदाउट इवन सप्लाई ऑफ एनी काइंड ऑफ वोल्टेज और टेम्परेचर। सो दैट्स वाई कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स। एंड इंसुलेटर में क्या होगा फिर? इंसुलेटर में ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत बड़ा रहता है, नॉट इवन वन, इट इज़ मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ ए ह्यूज एनर्जी। ठीक है। सो ये कुछ थाउजेंड ऑफ वोल्ट्स या कुछ थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस या 20,000 वोल्ट, इसके रेंज के बाहर की ये एनर्जी रहती है। सो दैट्स वाई इंसुलेटर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप ही नहीं कर पाते, एंड हेंस इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट, क्योंकि उसके कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहते हैं। So I think I have answered almost all the questions of वाइवा। वाइवा के इसमें जो क्वेश्चंस डाले थे या TAE2 के टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे, समझ में आए उनके आंसर्स? ज़्यादा हार्ड नहीं है, दिस इज़ ओनली बेसिक थ्योरी एंड यू शुड नो दिस थ्योरी ऑलवेज। ओके, shall we move ahead? Now, now what is the thing? If I have suppose a semiconductor, now I will tell you just little bit more basic, लाइक एन टाइप एंड पी टाइप, थोड़ा और ज़्यादा। अब जैसे ये सपोज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ठीक है, तो एन टाइप में हु आर मेजॉरिटी चार्जेस? एन टाइप हैज़ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, विच वन? इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। सो एन टाइप में हम ज़्यादा क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। पर इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें दूसरा चार्जेस है ही नहीं, दूसरे चार्जेस इसमें हैं, और वो कौन है? होल्स। पर वो कैसे रहेंगे? वेरी स्मॉल इन नंबर। तो यहाँ पे हम बहुत थोड़ी संख्या में होल्स दिखाएंगे, मिनिमम नंबर। वेरी गुड। एंड दीज आर कॉल्ड माइनॉरिटी चार्जेस। यस, वेरी गुड एवरीवन। ओके, नाउ आई हैव अनदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज़ पी टाइप। नाउ पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप हैज़ लार्ज नंबर ऑफ holes. Very good. So these are majority charges of p type semiconductor. तो बहुत सारे होल्स रहेंगे। आई कैन शो एच और आई कैन इवन शो सर्कल्स फॉर होल्स। और इसमें बहुत कम संख्या में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, नाउ आई विल शो देम बाय सर्कल्स सिंस आई हैव यूज्ड हियर सर्कल्स। सो आई विल शो hollow circles as holes. So electrons are minority. Very good. सो ये करंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइनॉरिटी करंट, मेजॉरिटी करंट। तो यहाँ पे बहुत थोड़े रहेंगे इलेक्ट्रॉन, रहेंगे बट बहुत थोड़े रहेंगे। ठीक है। सो दिस इज पी टाइप। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज, इफ आई जॉइन दीज टू सेमीकंडक्टर्स टुगेदर, सो इफ आई फ्यूज देम टुगेदर। अब जनरली क्या होता है, वी डू नॉट ग्लू देम, उनको ग्लू नहीं करते,
उनको क्या किया जाता है, हाउ द N and P joining is done, which is called as a semiconductor diode. We take a pure crystal of semiconductor and from one side we add pentavalent impurity. No, biasing is latter. Here we are just discussing how the device is formed, how PN junction diode is created. So from one side we will add pentavalent impurity, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएंगी. फ्रॉम वन साइड वी ऐड ट्रावेलेंट इम्प्योरिटी. एक ही सेमीकंडक्टर के इंट्रिंसिक चिप में दोनों साइड से दो अलग अलग इम्प्योरिटी इंजेक्ट की जाती है. तो यहाँ पे होल्स की संख्या बढ़ जाएंगी और जैसे ही वो पास में आते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे होल, सो दे विल फॉर्म अ बॉन्ड, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉन इज समथिंग विच कैन सेटिस्फाई अ होल एंड होल इज समथिंग विच इज हैविंग अ एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जहाँ पे ये पास में आ गए नियर द जंक्शन जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन हो जाएंगे. सो ये एक बन जाएगा हर्डल फॉर रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल टू ट्रैवल एंड दिस इज डिप्लीशन रीजन, या इसी को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल वी नॉट. ठीक है, तो इस साइड में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी होल्स है. इस साइड में मेजॉरिटी होल्स है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है. ये होता है विदाउट बायसिंग कंडीशन. पीएन जंक्शन डायोड जैसे ही फॉर्म होता है ये वाला डिप्लीशन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल बन जाता है. अब बायसिंग क्या होता है, व्हेन वी ऐड बायसिंग टू दिस काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस. जैसे एन साइड को, ये साइड है एन, ये पी, तो इसको दो साइड से है तो हम इसको दो तरीके से बायसिंग कर सकते हैं. अगर मैंने पी को पी और एन को एन लगाया तो ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग, करेक्ट बायसिंग. इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिविटी इस होल को रिपेल करेंगे और बोलेंगे आगे जा, तो ये होल यहाँ से यहाँ मूव होना शुरू होगी और ये निगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगी, पुश करेंगी. सो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे. तो ये डिप्लीशन रीजन क्या होगा, डिप्लीशन रीजन विल स्टार्ट गेटिंग क्रश्ड एंड क्रश्ड. छोटा छोटा होते होते हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो जाएगा. जैसे इसका वोल्टेज हम इतना बढ़ाते हैं जो इस वी नॉट को क्रॉस कर जाए, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, सॉरी ये होल्स यहाँ से यहाँ और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव होना शुरू होंगे और फिर करंट बनेगा. हमने देखा था होल्स और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट मूव करते हैं पर उनका करंट एक ही डायरेक्शन में बनता है. सो दैट इज डबल द अमाउंट ऑफ करंट इज फॉर्म. दिस इज फॉरवर्ड बायस. ठीक है, और फिर दूसरा बायसिंग होता है रिवर्स बायसिंग. अगर हमने एन साइड को लगाया निगेटिव ऑफ बैटरी एंड पी साइड को लगाया पॉजिटिव ऑफ बैटरी, तो ये जो बायसिंग है ये होता है रिवर्स बायसिंग. अब इसमें क्या होगा, ये होल्स जो हैं वो बैटरी के ही निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो होल्स यहाँ से दूर चले जाएंगे सब लोग और ये जंक्शन जो है फिर ये और बड़ा होते जाएगा, डिप्लीशन रीजन. सो देयर विल बी नो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. पर कौन से वाले, मेजॉरिटी वाले. पर अब माइनॉरिटी वालों को सही सही पोटेंशियल मिल गया. ये देखो ये पॉजिटिविटी इस माइनॉरिटी होल को सही बैठ गई तो वो क्रॉस करेगा. तो रिवर्स बायस में भी थोड़ा सा करंट फ्लो होता है और जिसको कहते हैं रिवर्स करंट या माइनॉरिटी करंट, जो कि बहुत छोटा होता है, जो माइक्रो एम्पियर में होता है. फॉरवर्ड बायस वाला करंट मिली एम्पियर में होता है. तो ये है डायोड थ्योरी. समझ में आया है सबको? हैव यू अंडरस्टूड द डायोड थ्योरी? हम लोगों ने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रैक्टिकल किया जिसमें हमने देखा था कि शुरुआती में करंट नहीं होता कुछ और थोड़ी देर बाद करंट एकदम से बढ़ता है. तो वो इसलिए कि जब तक ये वी नॉट पोटेंशियल, बैटरी पोटेंशियल वी नॉट से ऊपर नहीं जाता करंट नहीं बढ़ता. पहले तो जब बैटरी पोटेंशियल वी नॉट से नीचे है तब नो करंट. जैसे ही मैच करना शुरू किया धीरे धीरे करंट बढ़ना शुरू हुआ और जैसे ही बैटरी पोटेंशियल वी नॉट से ऊपर हो गया तब ये एकदम से बढ़ गया. तो ये वी नॉट होता है बिल्ट इन पोटेंशियल, जो हर एक डायोड का, जैसे सिलिकॉन डायोड का 0.7 होगा, जर्मेनियम का 0.3 होता है. तो ये हर एक डिवाइस का खुद का बिल्ट इन पोटेंशियल है. जैसे ही डिवाइस बनता है वो अपने आप वहाँ पे बन जाता है. तो कम से कम उतना सप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद वो फ्लो होना शुरू होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायोड थ्योरी, बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर आई कैन से. एंड देन नेक्स्ट इज हॉल इफेक्ट. तो यहाँ तक समझा क्या सबको? हैज़ एवरीवन अंडरस्टूड? यस.
अगर आपको ये बेसिक सेमीकंडक्टर का समझ में आता है, यू कैन ईजिली आंसर द वाइवा क्वेश्चंस, यू कैन ईजिली गो फॉर एनी सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इट्स वर्किंग. Okay, so now let us go for the next slide, and that is Hall effect. Now Hall effect we have already taken in practicals. याद है क्या Hall effect? याद है ना सबको? हाँ, क्या करते थे हम लोग? We had two piece of electromagnet pole pieces. If I draw, there were two pole pieces of electromagnet in which I am going to keep a semiconductor chip such that the डायरेक्शन ऑफ दिस इज परपेंडिकुलर, है ना. सो ये सपोज नॉर्थ था, ये साउथ था. सो ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, और करंट हमने यहाँ पे ऐसे भेजा है. सो दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दिस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विल डाइवर्ट दिस करंट. तो ये चार्जेस जो है वो ऊपर जमा हो जाते हैं, और फिर ऊपर की तरफ सपोज पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, नीचे निगेटिव, तो फिर हॉल वोल्टेज डेवलप होता है, और वो बताता है कि सेमीकंडक्टर पी है कि एन है. याद है क्या सबको? डू यू रिमेंबर हॉल इफेक्ट? वी हैव डन ऑल दिस थ्योरी इन द फर्स्ट प्रैक्टिकल. जब हमने हॉल इफेक्ट लिया था उसमें मैंने थ्योरी भी बताया था. सो वो अभी यहाँ पे भी है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू मोर डिटेल्स सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द हॉल इफेक्ट. ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन you the diagram. So what is the diagram? Now look at the diagram carefully. This is a piece of semiconductor. सो व्हेन यू सेंड द सेमीकंडक्टर, ये देखो करंट, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं. जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड शुरू किया, इलेक्ट्रॉन अब एक साइड में डाइवर्ट हो गए और अब वहाँ पे जमा हो गए. अब अगर आपने इन दोनों फेसेस के बीच में वोल्ट मीटर लगाया तो ये कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाता है, एंड दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ हॉल वोल्टेज. ओके, so when a current carrying semiconductor is kept in a perpendicular magnetic field, the charges are getting collected towards the one face, rear face, and if we have the voltage difference measured, then we find some voltage developed in between the two rear faces, and this is nothing but the Hall voltage. The sign of the Hall voltage can also tell you the type of the semiconductor. ये भी मैंने बताया था जब हमने प्रैक्टिकल किया था. अगर पॉजिटिव वोल्टेज आता है तो दैट इज पी टाइप, नेगेटिव वोल्टेज आता है तो एन टाइप. I hope you do remember. Do you, everyone? Yes. Okay. So this is Hall effect, and then there are some formulae. ओके, जिसमें से कुछ फॉर्मूले तो हम यूज़ भी करते हैं, जैसे ये आर एच हॉल कोएफिशिएंट, ये हम निकालते हैं इन द प्रैक्टिकल 1/n/e, है ना. Then the voltage, Hall voltage can also be found out. So you don't have the derivation in the syllabus, you have directly the numerical based upon Hall voltage. Okay, so numerical we will solve in the numerical class of Hall voltage. Okay. मे बी कब है हमारा न्यूमेरिकल क्लास? कल है ना? कल नहीं, परसों. सो विल सॉल्व द न्यूमेरिकल इन द न्यूमेरिकल क्लास. सो ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लोगे और उसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो आई हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल फॉर यू टू सॉल्व, एंड देन दिस इज पी एन जंक्शन डायोड थ्योरी जो मैंने आपको बताया था. लेट अस सी द एनिमेशन. पी टाइप, एन टाइप, when they are joined together या fused together, this is bond formation, this is depletion region. So this is having a potential, this is called built-in potential V naught. समझा सबको? सो ये पी एन जंक्शन डायोड जब बनता है तुरंत तब ये हो जाता है. दिस इज़ नॉट इवन बायस्ड. अब तक इसको बैटरी लगाया ही नहीं है, ये बिना बैटरी का ही बिल्ट इन पोटेंशियल अंदर डेवलप होता है जैसे ही डायोड मैन्युफैक्चर किया जाता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट या normal state as soon as the diode is formed. And here I have shown the different symbols of diodes. Can you see? This is simple diode having P and N. P side is triangle, N side is the line. ठीक है. Then Zener diode इस तरह से Z जैसा सिंबल है. Then Schottky diode, Varactor diode. Varactor diode मतलब ये डायोड कैपेसिटर जैसा काम करता है. So it is called variable capacitor diode, Varactor diode.
देन टनल डायोड, देन लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी सबको पता है, देन फोटो डायोड, लाइट डिपेंडेंट डायोड जिसके ऊपर लाइट गिरा हो तो उसका करंट चेंज होता है. So these are different different kinds of diodes. Diode is an artificial device made by human, so we can make them as per our requirement. Okay. So naturally occurring semiconductors होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम जो कि मिनरल्स है, पर बाकी फिर डायोड वगैरह ये सब डिवाइसेस है विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. Got it, everyone? So this is unbiased PN junction diode as soon as when it is formed. Then this is biasing. अब ये देखो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है. So ये देखो the holes and electrons are crossing and the current is formed. And reverse bias में क्या होता है, holes and electron cannot cross. ये देखो उसका डिप्लेशन रीजन बढ़ जाता है. ओके, वंस अगेन फॉरवर्ड बायस, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट क्रॉसिंग तो डिप्लेशन रीजन छोटा हो जाता है. ओके. एंड रिवर्स बायस में क्या होता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे टुवर्ड्स द बैटरी सो डिप्लेशन रीजन बड़ा हो जाता है. So I hope you got this completely. Now these are the energy band diagrams of PN junction diode, forward bias, reverse bias. These I am going to explain you in the next lecture. Okay? क्योंकि इसी के ऊपर फिर डिपेंड करता है हमारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हमको इस यूनिट में पढ़ने हैं, एलईडीज़ वगैरह. सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉपरली देखेंगे ये डायग्राम कैसे बनाई जाती है. ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम एंड ऑल. सो आई होप यू हैव गॉट द थियोरी टिल नाउ. अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आज के लेक्चर में, एक्चुअली टुडेज लेक्चर इज जस्ट द बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर. But if your basic is clear, then everything will be well understood and you will be able to well answer all the questions of your Viva and all. Right, everyone? Like I said, I can see now 59 students have joined.